Good evening, everyone. I extend a warm welcome to everyone present here on behalf of SOLVE Foundation for today's Journey to Safety webinar series on the topic Community Outreach and Road Safety. We'll kick off today's session with a brief introduction of Indian Road Safety Campaign, following which I will hand over the session to our host for today, Ms. Ekta Maurya. I request all participants to please post your questions in the chat box, following which Ekta ma'am will take it up in the end. Indian Road Safety Campaign is the initiative of Solve Foundation working towards making the roads safer in India. Started as a project at IIT Delhi due to the death of students in a road accident, IRSC has grown to be the largest youth-led organization in India. IRSC is currently working with people from the UN, WHO, Ministry of Road Transport and Highways, various state governments and zonal policies, the Supreme Court, AIIMS, IITs, and other research centers across the world in its endeavor towards Vision Zero. Indian Road Safety Campaign has launched the Journey to Safety webinar series where prominent and distinguished personalities are invited to speak and spread awareness about the importance of road safety and the protocols that one needs to ensure. Our moderator for today is Ms. Ekta Maurya, a journalist and PR professional who volunteered as program manager at Solve Foundation last year. She is currently pursuing her MBA from IIM. The flow of the webinar will be as follows. Ms. Ekta will introduce the speakers and the organization, after which the speaker will give her talk. There will be a panel discussion between the speaker and the host, and the audience questions will be taken up in the end. Without further ado, I hand over the session to Ekta ma'am. Thank you, Anupma, and a very good evening to everyone. Thank you for joining us on a Sunday for such an important issue that we have taken up here at IRSC. So, I'd like to introduce the issue that is up for discussion today. Road accidents and fatalities are tragically common occurrences in some of the countries where road accidents are common, especially in India. So, India's road safety needs to be improved. Several communities are taking action for the same. However, what we wish to discuss today is community road safety. And for that, we would like to invite our esteemed guest, Kanchan Aute, Deputy Manager Community Impact of United Way, Mumbai. Kanchan ma'am holds a bachelor's degree in physics and post-graduation in HR management from Wellinker Institute of Management, Mumbai. Working in the development sector for the last 10 years, she is a trained first responder who has completed 4 courses of training from the Indian Red Cross Society and St. John Ambulance. After completing her PG, she worked with Indian Red Cross Society, Maharashtra, as program manager, looking after restoring family links and disaster response projects. Since 2016, ma'am has been working with United Way Mumbai, leading road safety projects. She is also responsible for stakeholder mapping and liaising, successful implementation of the projects, capacity building of team and NGO partners. A little bit about this organization that ma'am works with. United Way Mumbai is a registered non-profit organization. It is a part of the 130-year-old United Way movement spanning 41 countries across the world. For the last 17 years, United Way Mumbai is working in Mumbai on flagship programs in the areas of civic awareness, public safety, health, and greening. As part of their commitment for improving the state of road safety in Mumbai, they have been implementing special community impact initiative, especially the one which is United for Road Safety URS, with the aim to enhance the state of road safety on Indian roads with a focus on education of road users and improvement of post crash care response. Right now, they are successfully implementing 2 projects, namely Two Wheels, One Life for College Youth and Learning License holder at Andheri RTO, and slowing down in their campaign right now to advocate the need to respect the speed limits on city roads. I'd like to hand it over to Kanchan ma'am now. Ma'am, please share some words on community impact on road safety. Yeah, thank you so much, Ekta. I hope I'm audible. Yes, ma'am. Yeah, thank you. So, Ekta, I think you have covered most of the speak I have for me. United Way Mumbai, we are a non-profit organization, and since last 17 years, we are working in Mumbai. We have 6 core areas in which we are working.
So the most common is safety, health, education, livelihood, environment, and social inclusion. So as Ekta mentioned, we have a special community impact initiative called United for Road Safety. So basically, the all in the world they have the 4 E's to for an approach to improve the road safety is education, engineering, enforcement, and post emergency care response. So right now in United Way Mumbai, we are targeting 3 of them. Like we are in education. We are having 2 programs who are targeting education. The first E of the road safety, which is education. So Two Wheels One Life, and we have one more program in Two Wheels One Life. We are mostly targeting the youth, college youth, especially because the MORT statistics shows that the share of two-wheeler riding is much more and that too among the age group of 18 to 35 years, which is a productive age group. So we are targeting youth in Two Wheels One Life. Then we have a VIA, Global Road Safety Education for Next Generation program, in which we are targeting children from the age group of 10 to 14 years. We think that this is the right age group to inculcate the road safety culture. So we are working with children in education, in educating them in road safety. Then in advocacy, we have the Slow Down Project. It is a campaign to advocate the need of adhering to speed limits among the city limits, because this program we are implementing in Mumbai city. For post crash care response, we are having one of our program is a Jeevan Doot. So Jeevan Doot is a program in which we are creating a force of trained first responders among the from the community. These are some of the projects we are currently working on. These are the big projects we are right now implementing. If we talk about Two Wheels One Life project, since 2016 we are working on Two Wheels One Life project. So up to 2018 we were only targeting the youth from the college youth. So we used to go to the college. We used to conduct the session. It was a 3 to 4 year long session. Then we also do the on-wheel demonstration. How should pillion in which we were talking about the posture of the rider as well as the pillion rider, the mistakes both of them are doing while riding a bike. So all these how to check your tires, all safety measures. So and then we also have our simulator. So we have a specially we mounted a two-wheeler simulator on a 407 vehicle, and we used to carry them to the each of the college. And after completion of the session, हम लोग उनको बोलते थे कि आपको अगर अभी हमने 4 to 5 आवर के सेशन में अगर हमने आपको ट्रेन किया है, तो अभी आप उसका असेसमेंट कीजिए. तो क्योंकि हमें पता था कि बहुत सारे बच्चे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते थे जहाँ पे बच्चे ऐसे थे कि हाँ हमारे पास लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग गाड़ी तो चलाते हैं. तो हम लोग उनका असेसमेंट लेते थे. तो वहाँ पे असेसमेंट में हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज, प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज थे जहाँ पे उनको वो असेस होते थे. जैसे उन्होंने रेड लाइट जंप कर दी, तो वहाँ पे पॉपअप आता है कि आपने ये गलत किया, या फिर आपने इंडिकेटर ना देते हुए आपने ओवरटेक किया है, तो वो पॉपअप आ गया. उसके बाद जनरेट होता है, एक रिपोर्ट जनरेट होता है, उसके आपको मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 100. और फिर हम लोग उनका काउंसलिंग करते थे कि ये चीजें आपने गलत की है, ये चीजें आपने सही की है, और आपको अगर सही चीजें करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा. टू व्हील्स वन लाइफ में हमारा अप्रोच एक्चुअली ऐसे भी था कि प्रीचिंग मोड में नहीं होना चाहिए, बच्चों को उसके पीछे का कारण बताना चाहिए. जैसे इसी के लिए हमारा जो मॉड्यूल है वो हमने एक्चुअली जब हमने क्रिएट किया, लेकिन हमने वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया था, हमने ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के साथ शेयर किया था, और फिर हमने उसमें से उनके फीडबैक्स लिए, उसको हमने फिर से रिवाइज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल हमने बनाया था, और जहाँ पे हम लोग उनको टेक्निकल इश्यूज भी हम लोग एड्रेस करते थे.
क्योंकि बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन वो क्यों पहनना चाहिए, वो कैसे बना हुआ होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फुल फेस हेलमेट क्यों पहनना चाहिए। चिन एरिया को बहुत ज्यादा जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट चिन एरिया पे होता है। वन एक यानी हम बोलते हैं वन इम्पैक्ट हेलमेट ही क्यों पहनना चाहिए, उसकी सेफ्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। स्पीडिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका सेफ्टी ट्रायंगल जो होता है वो आपका स्पीड बढ़ने के बाद कैसे कम हो जाता है, आपका विजन कैसे कम हो जाता है। इवन ड्रिंक जब आप करते हैं तो आपका जो टनल इफेक्ट होता है। तो हम लोग ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट में ज्यादा बात करते हैं उनके साथ। तो बच्चों को भी, क्योंकि ये मिलेनियल जनरेशन है, हमें ये रियलाइज हुआ कि ये मिलेनियल जनरेशन है, वो आपका सिर्फ नहीं सुनेंगे कि आप हेलमेट पहनो, आपको ये फाइन है इसके लिए आप हेलमेट पहनो, उसके पीछे उनको टेक्निकल रीजंस भी देने पड़ते हैं। तो और हमारे ट्रेनर्स भी थे, हमने ट्रेनर्स भी ऐसे चूज किए थे जो खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है और साथ में साथ वो राइडर्स भी है, जो राइडर्स लंबे राइडिंग के लिए जाते हैं, वैसे वाले राइडर्स हमने चूज किए थे। तो ये हमारा 2 व्हील्स 1 लाइफ का था। विया प्रोजेक्ट जो हमारा जो एजुकेशन में और जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, वहां पे हमने ये ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरशिप उन्होंने तैयार किया हुआ मॉड्यूल था, जो हमने पायलट फेज में 2019 में। एक्चुअली 2 व्हील्स 1 लाइफ में मैंने और एक मेंशन करना एक्चुअली मैं भूल गई। 2018 तक हम लोग ये सिर्फ प्रोग्राम यूथ के लिए कंडक्ट करते थे, लेकिन 2019 से हमने इसको इसमें और एक कंपोनेंट ऐड किया और हमने अंधेरी आरटीओ जो है, इट इज वन ऑफ द 4 आरटीओज इन मुंबई। तो हमने वहां पे उनके साथ टाई अप करके एक इनफॉर्मल वे में हमने लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेंट के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो जो भी लर्निंग लाइसेंस के लिए आता था, उनका ऑनलाइन सेशन होने के बाद हम लोग उनको एक घंटे के सेशन के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे हम लोग सेफ राइडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं। अगेन वहां पे भी हम लोग अपना सिमुलेटर लेके जाते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं। और आरटीओ का भी हमें उतना उनका विलिंगनेस था उसमें कि वो भी लोगों को, दो ये वॉलेंट्री था ये सेशन अटेंड करना, लेकिन आरटीओ ने भी बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स डाले थे कि लोगों को वहां तक मोबिलाइज करने के लिए। और फिर जैसे ही हम लोग, हमारा जो सर्टिफिकेट था कि उन्होंने यानी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता था। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये इनफॉर्मल वे में था और हम लोग बहुत ज्यादा, ना ही आरटीओ ना ही हम लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकते थे कि आपको ये अटेंड करना ही है। हमने ये वॉलंटरी रखा था, लेकिन 90% लोग उसको अटेंड करते ही थे। सेकंड जो विया के बारे में मैं जो बोल रही थी कि ग्लोबल रोड सेफ्टी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोग्राम था, ये हम लोग 10 to 14 ईयर्स एज के बच्चों के लिए हमने ये डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। एक्चुअली ये डिजाइन किया है जीआरएसपी ने, ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरशिप ने। और उन्होंने पायलट फेज में 2019 में इसको लॉन्च किया था 3 कंट्रीज में, इंडिया, कैमरून और फ्रांस में किया था। इंडिया में जब उन्होंने उसको लॉन्च किया था तो हमने पायलट फेज में मुंबई और चेन्नई में हमने दो स्कूल्स में इसको यानी हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था और उसको थोड़ा सा हमने इंडियनाइज किया था। क्योंकि ये प्रोग्राम जैसे फ्रांस से जो जहाँ के एजुकेशन एक्सपर्ट थे उन्होंने बनाया था, तो इसको हमने इंडियनाइज किया था। और उसके बाद हमने स्केलअप में उसको हमने 40 लास्ट इसमें तो हमने इसको 2019 में हमने उसको लॉन्च किया था। 6 सिटीज में हमने उसको लॉन्च किया था, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद में। 2020 में हमने उसको 130 स्कूल्स में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये 6 सिटीज में, और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया था। एकेडमिक ईयर खत्म होते होते हमारा कोरोना का शुरू हो गया। तो हमें ये टाइम जब हमने किया था तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको 4 मॉड्यूल्स है, ओपनिंग मॉड्यूल, नॉलेज मॉड्यूल, क्रिएटिव और इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में, ओपनिंग मॉड्यूल है जैसे वहां पे आपको बच्चों को रिलेट करवाया जाता है कि क्यों रोड सेफ्टी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों उन्होंने सीखना चाहिए। उसके बाद नॉलेज मॉड्यूल है जहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग पे बात होती है, क्योंकि ये दो हमें लगा कि कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों में। दो अगर स्कूल के लिए नहीं यूज करते, लेकिन साइकिलिंग करने वाले कोई नहीं करता है, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। तो हमने वॉकिंग और साइकिलिंग वाले जो थे, हमने वो मॉड्यूल लिए है। उसके बाद क्रिएटिविटी मॉड्यूल है, जो बच्चों ने सीखा है उसको क्रिएटिव वे में वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने वहां पे जिंगल है, पोएम है, या फिर पोस्टर मेकिंग है,
स्किट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे सारे बच्चे उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल है, जहाँ पे बच्चों को खुद को उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं डे टू डे लाइफ में रोड सेफ्टी से रिलेटेड, वो उनको वहां पे खुद को ही असेस करने हैं कि ये प्रॉब्लम्स मुझे आते हैं और मुझे अगर ये प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हैं ये प्रॉब्लम कम करने के लिए, तो उनको खुद को ही उसके सॉल्यूशंस भी देने थे। तो इस तरह से हमने बच्चों को बहुत एंगेज रखा था। बच्चे खुद सोचना शुरू कर रहे थे, खुद का रोड सेफ्टी के बारे में खुद अपने हाथों में ले रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बच्चे डिस्कस कर रहे थे। तो ये विया का प्रोग्राम ये पूरा हमने ये साल भी हमें जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट था। हमें उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमने बहुत सक्सेसफुली और स्मूथली हमने उसको लिया है। ये साल भी हम 6 सिटीज में हम इसको नहीं कर पाए, लेकिन हमने 4 सिटीज में हम लोग फिर भी ये साल भी हम लोग ये विया का सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मोड में हमने उसको और ज्यादा इंटरटेनिंग कैसे हो सकता है, बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, इस सारी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए उसको ऑनलाइन इसमें भी किया है। कुछ हमने एक्टिविटीज जैसे हमने हमारा 32nd नेशनल रोड सेफ्टी वीक हुआ, तभी हमने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन लॉन्च किया, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन लॉन्च किया। और बिलीव मी, हमें नहीं लग रहा था कि ऑनलाइन बहुत इतने ज्यादा हमें उसका यानी बच्चों के पास से हमें इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बच्चे सोचना शुरू कर रहे हैं रोड सेफ्टी के बारे में। तो मुझे लगता है ये हमारा ये एजुकेशन प्रोग्राम है। दूसरा हमारा एडवोकेसी में जो हमारा स्लो डाउन प्रोजेक्ट है, इट इज रिलेटेड टू स्पीडिंग। ये कैंपेन है जो हम लोग मुंबई में कर रहे हैं। मुंबई ट्रैफिक ब्रांच ने ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच ने 58 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। उसमें से 20 ब्लैक स्पॉट्स ऐसे थे जहां पे स्पीडिंग कॉज था फेटालिटीज का, यानी वहां पे ज्यादा फेटालिटी स्पीडिंग की वजह से हो रहे थे। तो हमने ये 20 स्पॉट्स हमने अडॉप्ट किए हैं और वहां पे हम लोग कम्युनिटी में से, जैसे हम लोग ये कम्युनिटी आउटरीच के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एडवोकेसी वाला जो प्रोजेक्ट है, तो वो हमने ये किया है कि हम लोग कम्युनिटी में से ही हम लोग पीयर प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे, जो लोग अपने हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर उनको उसमें सोल्यूशन चाहिए। ये पूरा प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इसमें हमने किया था कि हमने ऐसे ही नहीं था कि ये 20 ब्लैक स्पॉट्स है, यहाँ पे स्पीडिंग का प्रॉब्लम है, नहीं। हमने उसके लिए पूरा बेसलाइन स्टडी कंडक्ट किया था वहां पे। हर स्पॉट पे हमने 2-2 दिन का हमारा स्टडी होता था, 12 आवर्स का। और वहां पे हम लोग जैसे व्हीकल का क्या बोलते हैं, डेंसिटी क्या होता है, व्हीकल का स्पीडिंग पैटर्न क्या होता है, कौन से व्हीकल का क्या स्पीडिंग पैटर्न होता है, ये सारी चीजों का हमने स्टडी किया था। और उसके हमने ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस जो थे वो हमने निकाले थे। और बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशंस हम लोग स्मॉल इंटरवेंशन हम लोग वो जगह पे क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे बीइंग इन मुंबई सिटी हमने ये देखा था कि बहुत सारी जगह पे रोड साइनेजेस नहीं है, यानी स्पीड लिमिट साइनेज नहीं है, स्पीड लिमिट साइनेज तो वो होना चाहिए, या फिर वो है फिर भी वो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा दूसरा कुछ यानी वो जगह कोई दूसरा यूज कर रहा है और फिर वो दिख नहीं रहा है, या फिर वो इनविजिबल है, या वो पूरा ब्लर हो गया है, या फिर उसमें कुछ पेड़ पौधे आ गए, इसके लिए वहां पे स्पीड लिमिट्स नहीं दिख रहे हैं। ये सारी चीजों के बारे में ये छोटे छोटे इंटरवेंशन है। जैसे अगर सरपेंटाइल हम लोग बोलते हैं कर्व दिखानी है, तो जिसको जो आपका विजुअल इफेक्ट कम कर देता है कि जैसे बहुत ज्यादा स्पीडिंग कर रही है गाड़ी और उसको लगा कि आगे मेरा रोड नैरो हो रहा है, तो वो स्पीड कम कर देती है। तो ऐसे छोटे छोटे इंटरवेंशन हमने प्लान किए हैं जो जिसके लिए एडवोकेसी करेंगे। ये रोड सेफ्टी जो हमने रोड सेफ्टी एडवोकेसी क्लब बनाए हैं कम्युनिटी में से, वही इसको करेंगे। हमने उनको ट्रेन किया है कि किसके साथ बात करनी चाहिए। जैसे अगर आपको पता होगा, यानी सभी को पता है, यहाँ पे सारे रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ही है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई एक रोड ओनिंग अथॉरिटी नहीं है कि जिनके पास हम लोग जाए और उनको बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्व करना है। जैसे अगर रास्ता पीडब्ल्यूडी का है तो उसका फुटपाथ जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आता है। तो और वहां पे अगर रोड सेफ्टी का हमें कुछ रोड साइनेजेस लगाना है तो वो भी काम म्युनिसिपैलिटी का है, लेकिन वो उस रेकमेंड करना पड़ता है ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच को। तो ये सारी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है उसमें, उनको कम्युनिटी को भी पता नहीं होता है कि किसको अप्रोच करना है, कहाँ पे जाना है, और ये सारी अथॉरिटी एक टेबल पे है ऐसे भी कहाँ पे नहीं है।
तो फिर हमने उनको ट्रेन किया था कि आपको अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में भी जा रहे हो तो आपको कहाँ पे किसके पास जाना पड़ेगा। जैसे रोड डिपार्टमेंट अलग है, रोड मार्किंग वाला डिपार्टमेंट अलग है। हमने उनको लेटर कैसे लिखना है वहां से हमने शुरू किया है ये, कि आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको लेटर कौन से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। वहां से हमने उनको ट्रेन करना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना शुरू किया था। इवन हमने उनको उनके जो लोकल कॉरपोरेटर्स है या फिर बाकी के कुछ जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ वो कैसे रैपो बिल्ड कर सकते हैं और उनको लेके वो ये प्रेशर ग्रुप्स कैसे तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीजों में हमने कम्युनिटी को उनकी कैपेसिटी बढ़ाई थी। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा स्लो डाउन के लिए। ये इंटरवेंशन खत्म होने के बाद हम लोग फिर से उसका एंडलाइन सर्वे भी करने वाले हैं कि हमने बेसलाइन किया, हमने वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है वो निकाले, हमने इंटरवेंशन किया, लेकिन उसका क्या यूज हुआ है या फिर उसका कुछ यूज हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये चीज देखने के लिए हम लोग हमारे इंटरवेंशन खत्म होने के बाद हम लोग वहां पे एंडलाइन सर्वे फिर से करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है जीवन दूत, ये भी हमने पायलट फेज में किया था फर्स्ट टाइम 2018 में, जहां पे हमने ये 6 ब्लैक स्पॉट्स पे हमने कम्युनिटी में से ही लोगों को ट्रेन किया था फर्स्ट रिस्पांस में। बहुत ज्यादा फर्स्ट रिस्पांस यानी फर्स्ट एड में नहीं किया था, उनको फर्स्ट रिस्पांस में किया था। क्योंकि हमें पता है कि जब भी ऐसी कुछ दुर्घटना होती है, रोड क्रैश एक्सीडेंट, रोड क्रैश हो जाता है, तभी बहुत बार वही रिस्पॉन्स करते हैं जो वहां पे अवेलेबल है। तो हमने चाय वाला या फिर जो भी वहां पे अवेलेबल है वो लोगों को हमने मोबिलाइज किया था और उनको हमने ट्रेन किया था फर्स्ट रिस्पांस में। बहुत ही बेसिक एक चीज है कि 108 एम्बुलेंस, महाराष्ट्र में मुझे 108 एम्बुलेंस सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उसको कैसे कॉल करना चाहिए, क्या बताना चाहिए। ये सारी चीजें तो उसके बारे में हमने लोगों को बताया। गुड समैरिटन लॉ जो अभी लॉ हुआ है, पहले नोटिफिकेशन था, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। सबसे बड़ी डर लोगों में यही होता है कि मुझे बार बार हैरेस किया जाएगा, बार बार पुलिस बुलाएगी मुझे। तो हमने वो चीजों के लिए भी हमने उनको वो चीजों के बारे में भी बताया। और ये चीजें बताने के लिए हमने खुद ट्रैफिक पुलिस को ही बुलाया कि आप बताइए, गुड समैरिटन लॉ आप बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में जो लोग हैं वो बताएंगे तो उसका ऑथेंटिसिटी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने वैसे वो किया था, उनको एक छोटा सा किट दिया था जहां पे हमने फर्स्ट एड किट बोले, यानी हम लोग ऐसे सोचते कि फर्स्ट एड किट होगा तो वहां पे उसमें क्रीम होगा या फिर कुछ टैबलेट्स होंगी। तो हमने वो फर्स्ट एड किट बहुत ही अलग बनाया था, जहां पे हमने यूज किए थे कि जो हमें जो जिसका कुछ भी हार्म ना हो। अगर कोई भी बंदा जिसको कुछ भी पता नहीं है मेडिकल इसके बारे में, या फिर जो पढ़ लिख नहीं सकता है कि टैबलेट का एक्सपायरी डेट क्या है या फिर वो कहाँ पे देना चाहिए, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमने वो किट ऐसे बनाया था जहाँ पे हमने बैंडेज रखा था या फिर गॉज रखा था, जो भी एक्सटर्नल चीजें यूज कर सकते हैं वही रखी थी उसमें। एक उसमें हमने रखा था कि कार का जो कांच होता है, कार का जो ग्लास होता है वो तोड़ने के लिए क्या हो सकता है, तो हमने हैमर पहले रखा था, फिर बाद में उसमें हमने ग्लास कटर यूज करना शुरू कर दिया। तो या फिर सेफ्टी का हमारा सेफ्टी ट्रायंगल होता है वो यूज किया था, क्योंकि सेफ जोन करना भी बहुत अगर ऐसे कहाँ पे रोड क्रैश हो जाता है तो वो यूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी का वो ग्रीन कलर का जो जैकेट होता है वो उसमें था, पानी के पीने के लिए पानी था, ग्लव्स थे। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे रखी थी। अगेन जीवन दूत का भी हमने जो मॉड्यूल था वो हमने पहले जीआरएसपी का उनका एक टूल है वहां से हमने किया था। मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ तो मैंने भी थोड़ा सा सीखा था, तो जहाँ पे हमने वो मॉड्यूल वैसे बनाया था, जीआरएसपी का टूल यूज किया था। फिर हमने आईएमए को भी हमने अपना पूरा मॉड्यूल दिखाया था, तो उनके पास से वेटेड है ये पूरा मॉड्यूल। तो ये सारी चीजों को लेके हमने वो बनाया था। और हमने वो बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट वो रोड सेफ्टी का सॉरी जीवन दूत का किट रखा था, जो कहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं हम लोग, हमेशा भी अपने साथ कभी भी कैरी कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमारे साथ वो होना चाहिए। जीवन दूत के लिए हमारा सक्सेस ये था कि हमने सिर्फ 6 स्पॉट्स पे किया था, 142 लोगों को किया था, लेकिन हम लोग मैनेज कर पाए कि हम लोग उनका फॉलो बहुत अच्छे से लें।
वो कैसे कर रहे हैं, किसको वो उन्होंने किसी को यानी कुछ हेल्प की है क्या रोड क्रैश में वगैरह। और हमने जो 31st लास्ट ईयर का जो हमारा नेशनल रोड सेफ्टी वीक था, तभी आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विथ यू ऑल दैट हमारे 6 जो रोड्स ट्रेंड रोड सेफ्टी 6 ट्रेंड जीवन दूत थे, उनको फेलिसिटेट किया गया 31st नेशनल रोड सेफ्टी वीक में। 3 लोगों को मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने किया था और 3 लोगों को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच ने किया था। और सरप्राइजिंगली जब वो आए थे वहां पे उनका ये लेने, तभी हमने जस्ट हमने बताया था कि ये रोड सेफ्टी किट है। तो वो इतना हैंडी वो रोड सेफ्टी किट है कि एक जो हमारे जीवन दूत थे, उन्होंने वो निकाल के दिखाया कि ये मैं हमेशा मेरे बैग में रहता है और ये हमेशा मैं लेके घूमता हूँ। तो ये हमारे लिए भी अच्छा था कि वो इतना हैंडी है कि लोग लेके भी घूम सकते हैं उसको। तो ये जीवन दूत का हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से वो पायलट फेज किया था। अभी हम लोग उसको स्केल अप कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ कम्युनिटी को नहीं, अभी हम लोग ट्रैफिक पुलिस पर्सनल को भी उसमें ट्रेन कर रहे हैं। 400 ट्रैफिक पुलिस पर्सनल को फर्स्ट रिस्पॉन्स में ट्रेन करना है, क्योंकि गुड समैरिटन नोटिफिकेशन बहुत लोगों को पता नहीं है। और दूसरा है कि हमें जो कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स है, जो जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, या फिर ओला उबेर वाले ड्राइवर्स है, या फिर ट्रकर्स है, उन सारे 1400 टैक्सी ड्राइवर्स को हमें वहां पे ट्रेन करना है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स है ज्यादा करके जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Thank you for sharing that, Kanchan ma'am. Now we'll be taking some questions, some of them which we have already received from the audience. What was the main motivation behind the campaigns which have been started by United Way of Mumbai in the past 2-3 years? मोटिवेशन तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि यूनाइटेड वे में हम लोग ज्यादा करके जो काम करते हैं वो हमारा एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। कि हम लोग पूरे जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होता है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करके फिर हम लोग सोचते हैं कि हमें किस पे काम करना है। जैसे 2 व्हील्स 1 लाइफ वाला प्रोजेक्ट था, जब हमें हमारा वो शुरुआत वाला रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमें रोड सेफ्टी पे काम करना था। तो अब तभी हमने MORTH के सारे स्टैटिस्टिक्स देखे थे। बाकी के भी जैसे ब्लूमबर्ग फिलॉन्थ्रोपी मुंबई में काम करता है, उनके हमने रिपोर्ट्स देखे थे, जहाँ पे तब हमें पता चला कि ये 2 व्हीलर्स का ज्यादा शेयर होता है इसमें, और यूथ जो है वो ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है। फिर हमने उसके रीजंस पता करना शुरू किया। उसके बाद हमने उसके लिए एक नीड बेस्ड स्टडी कंडक्ट किया, सॉरी नीड पता चलने के लिए हमने एक स्टडी कंडक्ट किया कि लोगों को क्या पता चलना चाहिए, बच्चों को क्या है, स्टूडेंट्स को क्या है, ये एज ग्रुप को जो पता नहीं है वो उनको कैसे पता चलना चाहिए। बिहेवियर चेंज के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ये सारी चीजों के लिए हमने वो स्टडी कंडक्ट किया था। एंड बेस्ड ऑन दैट उसके जो रिकमेंडेशंस थे यानी वो थे, उसके ऊपर हमने आगे का प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स यानी हमारा मोटिवेशन यही है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर यानी रिसर्च पढ़ते हैं और उसके बाद ही हम लोग कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। Thank you for sharing that, ma'am. So the next question is that there is a lack of robust and good quality data on road safety and road accidents available in India. The numbers also, which are being shared every year by the National Crime Records Bureau, based on the hospitalization that have happened due to road accident and crashes, is only partly reliable, because a lot of crashes and accidents probably go unreported, as we know that it's not really happening completely. So how would you say that United Way Mumbai is measuring impact of any of the programs which are being conducted over the past years? तो एक्चुअली हम लोग हमारा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहाँ पे वेरी राइटली सेड बाय यू एकता, कि हमारे पास ऐसे कुछ रोबस्ट ये नहीं है कि जहाँ पे हमें पूरे और ऑथेंटिक फिगर्स मिल पाए जो भी रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हैं। बट वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू अदर देन दैट कि हमें उसके ऊपर ही NCRB के रिपोर्ट पे ही रिलाई करना पड़ता है, या फिर MORTH के इस पे ही रिलाई करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
ये डेटा भी कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं मुंबई के बारे में बात करूंगी तो ब्लूमबर्ग फिलॉन्थ्रोपी करके और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई के जो स्टैटिस्टिक्स है वो कलेक्ट करते हैं। तो हमने उनको अप्रोच किया था कि मुंबई के अगर हमें फिगर्स चाहिए, मुंबई के बारे में अगर हमें स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट चाहिए, तो हमने उनको अप्रोच किया था। जैसे अगर हम लोग बात करें जीवन दूत में भी, जब हम लोग ब्लैक स्पॉट्स के बारे में ढूंढ रहे थे तभी भी हमें समझ में आया कि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होती है ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के पास। जैसे कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए वो तो होती है, लेकिन क्यों हुए हैं उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है हम सारे लोगों को, रोड सेफ्टी में जो भी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, हमें भी हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इसमें कि हम ये चीज कैसे डेवलप कर सके या फिर ऐसे क्या प्रोग्राम्स हो। लेकिन मुझे लगता है लोकल इसमें होती है, ऐसे कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, जो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेस को ही हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन Right. Ma'am, the next question is, do you think there is enough dialogue on the issue of road safety in the government and the media as of now? मुझे लगता है पहले इतना मुझे लगता है डायलॉग नहीं था। लेकिन अगर हम लोग अभी का देख रहे हैं, जैसे हम लोग हमने जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं देती हूँ कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक से शुरू किया था हम लोगों ने, कि हम लोग पहले सिर्फ वीक का ही वो सेलिब्रेशन नहीं बोलूंगी, ऑब्जर्वेशन होता था कि हम लोग सिर्फ एक वीक के लिए ऑब्जर्व करते थे। उसके बाद हमने वो फोर्टनाइटली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अभी हमने जो ये साल का जो हमारा 32nd नेशनल रोड सेफ्टी कैंपेन था, वो मंथ लॉन्ग प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है इसकी जो ग्रेविटी है या फिर उसका जो जो भी सीरियसनेस है, मुझे लगता है अभी गवर्नमेंट में उसके ऊपर ज्यादा काम होना, ज्यादा बात होना शुरू हो गया है। क्योंकि यानी मैंने जैसे बोला कि 2018 में हमने ये अंधेरी आरटीओ में शुरू किया था, 19 में शुरू किया था ये टू व्हील्स वन लाइफ का प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग ये एक अपना टू व्हीलर सिमुलेटर लेके जाते थे। और हमें लग रहा था कि वो गैप है हमारे लाइसेंस सिस्टम में, उसको थोड़ा यानी हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, ये हम लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है ये अभी अभी एक निकला है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि सारे आरटीओज में सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है उनको। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी उस चीज में ज्यादा ध्यान दे रही है अभी, और कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे सिस्टम में भी यानी होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप वहां पे हो रहे हैं। इवन अगर हम लोग बात करें कि मीडिया में भी, तो बहुत ही पहले मीडिया में बहुत ही कम उसका कवरेज होता था, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ लोग नहीं देखते थे। अभी भी वो बहुत ज्यादा सीजनल है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश होते हैं तभी बहुत सारे आर्टिकल्स आने शुरू होते हैं रोड सेफ्टी पे, या फिर ऐसे कुछ ज्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई है तो ही आते हैं। लेकिन मुझे लगता है मीडिया में उसका कवरेज अभी बढ़ गया है कंपेयर टू जब हम लोग प्रीवियसली देखते थे उससे। Right. So, ma'am, we have another question from the audience, from Murali Pillai. One of the most important thing to prevent the crashes is to learn from previous crash and its causes. Our accident investigation is not at all up to the mark, and police or investigation authority is not always equipped to identify the true cause of road accident. Is there any program to help investigator to identify real causes of accident? Is it always that it is an error caused by the road user or the driver, or there could be other causes as well, like the condition of the road or the infrastructure? Those things also need to be identified, and people need to be made aware of that. So how is United Way Mumbai working in terms of that? नहीं, रोड क्रैश इन्वेस्टिगेशन हम उस चीज में हम लोग काम नहीं कर रहे रोड क्रैश इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हाँ हमें वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि हम भी जब जीवन दूत के लिए या फिर स्लो डाउन के लिए जब हम लोग रीच आउट कर रहे थे ये सारे अथॉरिटीज को, तो अभी हमें भी समझ में आया कि उनके पास इनफ डेटा है ही नहीं। उनके पास सिर्फ है नंबर ऑफ फेटालिटीज इतने हुए हैं, सीरियस इंजुरीज इतने हुए हैं, क्रिटिकल इंजुरीज इतने हुए हैं, फेटालिटीज इतने हैं। लेकिन उसका कॉज क्या है, उसमें कौन सी व्हीकल का ज्यादा यानी कौन सी ये थी जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, या फिर
उसमें क्या एग्जैक्ट रीजन क्या था वो रोड क्रैश के पीछे, ये सारी चीजों के बारे में इतनी जानकारी है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगता है ये रोड ऑडिट्स बहुत सीरियसली कोई ऐसे टूल भी होने चाहिए कि जहाँ पे हम लोग रोड ऑडिट्स कंडक्ट कर सके, कुछ ऑथेंटिक टूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चले। तो हमने कुछ यानी हम लोग जब स्कूल में हम लोग करते हैं तो हम लोग सिर्फ स्कूल के आजू बाजू के एरिया का ऑडिट करते हैं, जैसे स्कूल के आजू बाजू में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे होता है, हम लोग सिर्फ स्कूल से रिलेटेड होता है। हर स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो टीचर्स को लेके या फिर उनको लेके हम लोग या फिर बच्चों के लेके हम लोग वो स्कूल को ऑडिट करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हमारे पास टूल नहीं है या फिर ऐसे कुछ नहीं है जहां से हम ये सारा कर पाए। और मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास मुझे लगता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनके पास ज्यादा उसका इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये रोड सेफ्टी ऑडिट कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। Ma'am, does United Way Mumbai work with any celebrities or influencers who are road safety brand ambassadors? Like Morth and even some of the programs of Indian government for road safety work with road safety brand ambassadors like Sachin Tendulkar and Akshay Kumar. This question is shared by Johannes Remedios. एक्चुअली यूनाइटेड वे मुंबई हम लोग अभी फिलहाल तो कोई सेलिब्रिटीज के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि जब हमने टू व्हील्स वन लाइफ का जो प्रोग्राम किया था तभी हमने एक स्टडी कंडक्ट किया था, जहाँ पे हमने बच्चों को ये भी क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि आपको क्या पसंद आएगा कि जब हम लोग किसी से कोई सेलिब्रिटी आपको कोई कम्युनिकेशन यानी उसके बारे में बताएगा तभी आपको ज्यादा उसको आप फॉलो करेंगे, या फिर कोई ऐसा जो आपका आइडल है वो अगर उसको आपको वो मैसेज देगा तो आप उसको यानी उसको फॉलो करेंगे। तो सरप्राइजिंगली हमें लगा था कि सेलिब्रिटी के लिए ज्यादा आएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली हमारा जो स्टडी था उसमें लोगों ने बोला कि जो उनका आइडल है उनको वो ज्यादा फॉलो करना पसंद करेंगे। तो फिर हमने कभी ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जहाँ जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो अपना और ये सिर्फ मैं पॉजिटिव वे में नहीं बता रही हूँ कि सेलिब्रिटीज है ना, नेगेटिव वे में भी उनका लोग फॉलो करते हैं उनको। अगर कोई जैसे हम लोग बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स है, उसमें अगर वो कुछ रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते तो बच्चे वो भी करते हैं कि भाई ये तो ये बंदा XYZ ये तो नहीं कर रहा है फॉलो, तो यानी इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें भी होते। तो इन्फ्लुएंस वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड का होता है, लेकिन हमने सेलिब्रिटी के बारे में कभी यानी अभी तक हमने कभी सोचा नहीं। और हमें लगता है कि ज्यादा करके हम लोग सोचते हैं कि जो आइडल है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स है। हमने जो एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन किया था तो मुझे अच्छे से याद है मिलिंद भारांबे करके हमारे जॉइंट CP थे यहाँ के मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के। और जब वो आए थे वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना फिजिक वगैरह मेंटेन रखा है, तो बच्चों ने एकदम सीटियां वीटियां बजानी शुरू की कर दी थी। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को वो ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन सेलिब्रिटीज के बारे में यूनाइटेड वे ने कभी नहीं सोचा। Right. Ma'am, the other question that we have over here is that can all NGOs come together? There are several NGOs working in a scattered manner throughout the country on the same issue of community road safety and road safety. तो राजेश बाग जी का सवाल है कि सड़क सुरक्षा जन आंदोलन बने इसलिए हम सब NGO एक जगह आकर कुछ कर सकते हैं क्या? So what are your thoughts on this? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये बहुत यानी हमारा हमेशा यूनाइटेड वे का एक हमारा अप्रोच ऐसे ही होता है कि हमें आइसोलेशन में काम नहीं करना है, कि हम लोग या फिर डुप्लीकेशन भी नहीं करना है कि एक ही चीज मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, दूसरा भी कोई कर रहा है, तो ये डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग एक साथ आ सकते हैं, हमने अभी तक यूनाइटेड वे से हमने ऐसे कुछ एफर्ट्स नहीं डाले कि सारे NGO को साथ में लाने का, लेकिन हमारे एफर्ट्स होते हैं ज्यादा करके गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करने के लिए, कि हम लोग उनको एक साथ लाके डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए या फिर ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए उनके साथ काम करना। लेकिन इट्स अ वेरी गुड थॉट कि हमें सारे NGOs को साथ में आके ऐसे कुछ करना चाहिए। Okay.
Last question from this that we are taking from the audience. We do not have to always reinvent the wheel. Most of the best practices of road safety are already being implemented in other countries, and we could probably learn from them. Can you tell us any best practice of road safety that you have come across on the top of your mind, which is currently not being implemented, but you feel that maybe in the future, organization like United Way Mumbai can work on it? मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, जो अगर हम लोग उसको बहुत अच्छे से डेलिबरेटली फॉलो भी करें तो भी बहुत अच्छे से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये हम लोग चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है चाइल्ड रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में हम हमारे यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है कि हम लोग बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में सिखाएं, या फिर हम लोग यानी बच्चों को वो उनके रेगुलर इसमें आ जाए। हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में रोड सेफ्टी सिखाया जाता है, लेकिन वो इट इज अ एडिशनल सब्जेक्ट कि रेगुलर सब्जेक्ट से अगर उनको टाइम मिला तो ही वो सिखाया जाता है रोड सेफ्टी। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, उनके रेगुलर सब्जेक्ट में वो आना चाहिए। जो बाकी के सारे अगर हम लोग बाकी के कंट्रीज में देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज में ये उनका इट्स अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो ऐसे कुछ होना चाहिए, ये मुझे लगता है। इवन अगर हम लोग लर्निंग लाइसेंस या फिर लाइसेंस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, इट इज मुझे लगता है इंडिया में बहुत इजी है लाइसेंस मिलना। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो पूरी प्रोसेस थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग एज इंडियन हम लोग मौत से नहीं डरते लेकिन फाइन से डरते हैं। तो मुझे लगता है इन्फोर्समेंट भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। Right. Thank you so much for sharing your thoughts, ma'am. Would you like to leave us with some parting thoughts, something that we should think about, and what else we can do together as a community for road safety? United Way Mumbai is, of course, doing their part, but we also live in communities where there are small kids around us and school goers, and most of us drive, and also we have kids in the family driving. So, what would you like to leave us with? Any parting thoughts? And I request you to do this one in English because a lot of the audience members have been requesting. Oh, no problem. So I think according to me, as an adult, we have to follow some road safety rules because children, if you're talking about the children, they learn from us, from the adults. So in many of the schools, when we are implementing this project, we are in many of the schools. So that time, most of the school children were like, but my mom doesn't wear a helmet when she drops me at the school. So I think these are the things we all have to follow. We all have to it is not the responsibility of government or school to teach our children about road safety. It is us, we all parents, and we all who the children are look up to are responsible to inculcate this road safety culture among them. So I think that's it. Thank you for sharing your thoughts, ma'am. It was really a pleasure hosting you today and to learning more about the work of United Way Mumbai. Some of our audience members have also asked if they can volunteer with United Way Mumbai and work with them. Is there any way that they could contribute in an online manner? And what is United Way Mumbai doing right now online? Is there something in which everyone can be involved or learn more about road safety? So we right now we are conducting online sessions for all the people. Like previously we were used to conduct sessions only for the youth, but now yes, this is our page. Please do follow our page. We are on Instagram, we are on Facebook, we are on Twitter, LinkedIn. Please follow us and please write to us. We have our email ID is contact@unitedwaymumbai.org. If you want to volunteer for the at United Way Mumbai, please do write to us. We have opportunities for the volunteers also, and we need volunteers like you who really want to work in the field of road safety. That's it. And yes, we do have volunteering opportunities at United Way Mumbai. Thank you so much for your time, ma'am. And thank you for your thoughts and for sharing all of this information with us. Anupma, would you like to take over?
Like Ekta said, thank you so much, ma'am, for spending a Sunday evening with us. Thank you, audience, for listening. The certificate form has been shared on the chat, so please fill it up for certificates. Also, we look forward to seeing you next Sunday for continuing our journey to safety. We will have another webinar at 4 o'clock, but thank you so much for attending, ma'am, as well as all the participants. Thank you, Ekta. Thank you, Anupama. Thank you, Kanchan ma'am. Thank you, audience. Thank you. Thank you so much, all.